Yeah. Good evening, everyone. Welcome in today's session, and thank you so much, Professor, for joining us. Today we are going to have a session on special education. So it would be a question and answer session. If you have any question, you can put in a chat box. Professor, we'll go through those topics like homeschooling and all those, right? And then we will take those questions which parent will put in the chat box. So I request everyone to be on mute and don't share your screen during the session. Actually, interrupt. Professor, over to you. Okay, right, sir. So I hope I'm audible to all of you. Yes, sir. Hello. Yeah. Thank you, Pramod sir, for having me again on this platform. And you are really doing a very good job through this platform, Autism Parents Forum. You are making a very significant contribution to empower the parents. So it is like nothing about us without us. So without empowering the parents, we could not think about empowering our children. So thank you once again for having me. And today we are going to talk about the role of a special educator, or you can say what are the challenges children face in the, especially in the area of academic, schooling, and higher education options for future and others skills to make them independent. So if I start with the school readiness, so the very in the very beginning we think and we work upon the school readiness area. So we will talk about what is the school readiness skills and how can we train our children in this area. So there are a few questions we are having in advance. So as you sent to me, so I would start with the questions. I will not answer those questions right now, but I would link the questions today's session. So like one parent has asked, like how to identify and work on child's interest and career, right? And the next question is, I wish to know about the, one parent is asking, I wish to know about the challenges my son will be facing in the future. Okay. And one child has pointed like, I wish to know if my child will be able to include in the mainstream school or not. And then one parent has put their question. It is yes, it is looking forward to learning of innovative strategies for intervention, especially during the COVID-19 lockdown. And my child is going to be in first standard next year. And because of COVID, he had developed several social anxiety. Again, that we have been working for past 4 years. And how is this going to affect my child in school, and what I can do to make it easier for my child. So these are some questions. So these are directly linked with the school readiness, like how we make our children ready to learn. So school readiness is basically ready to learn. So ready to learn is not only limited with the academic skills. It's a term where we work upon the readiness skills which is required in the school setup. Okay, so if we talk about specifically, then it is a successful transition towards school. Like how can we go successfully without any hazards, without any complications? If we feel that my child should go in the school with the mainstream kids, so-called mainstream kids, so then we have to work upon certain skills which is required at early stage. Like you all must be aware that now in this last 10-15 days before, there is a policy which is National Policy of Education came into effect in our country. So in this National Policy of Education also, there is a very much focus, very much emphasis on preschool learning. They call it early childhood education. So basically early childhood education is the foundation on which our child will go to success in the
formal schooling, right? So when we talk about the schooling, lots of things comes in our mind, like what are the skill, how, or what are the skill for which we were to work with my child so that he can face minimum issues in the classroom. So there are some skills like self-care. So first skill is like self-care, how to develop self-care skills. Suppose that if the child is not, if we talk about in terms of our children with autism, then if the child is not toilet trained, he cannot communicate his toilet need, then it would be very difficult for this mainstream schooling. So first of all, we have to work upon the self-care skills. Then there are skills which is related to the cognitive skills. So we have to work on the perceptual training, like how our child is learning. So we have to, like, one child ask how to identify the interest so that we can work as per the child's interest in learning. So we have to identify the learning interest of the child, and we have to work upon the academic skill like pre-academic skill, pre-reading, pre-writing skills, pre-math concepts. So we have to start with the beginning. Generally what happens, when the child is diagnosed with ASD, the major issues are language, social interactions, and sensory issues. So our complete focus is shift toward to resolve these issues, like how to make the child say it, how to make the child verbal, and how to make the child to indicate his needs. So we in early 2 3 years, like 3 to even 4 to 5 years, we completely focus on the language and behavior and sensory, or like occupational therapy part. And somehow it is not knowingly but unknowingly we deny the importance and relevance of pre-academic skills. Right. So when we talk about preschooling or school readiness, when we have to then we have to work on these skills from the beginning. So what happens when we think now? Let's suppose that now my child is ready to say it, he is settled in the therapies, and now we can start. So till then, the age of the child is about 6 year or 7 year. So when we start teaching him the academic concept at the age of 6 year, then the child is already delay in schooling. Like suppose that like 4 year plus child should be in the preschool, 6 year plus child should be in the first grade school. So when we start teaching academic skill at the age of 6 year, then suppose that in the training it will require minimum 1 to 2 years. So once the child is ready for first grade, then the child's age is 8 year or 9 year. So to fill this gap, as we move forward, to fill this gap, it is very difficult. Like when we prepare for the first grade, the child is already in second or third grade. And in our education system, when we talk about inclusive schooling, there are only few schools we can count on the fingers who are really aware with the inclusive education. What is inclusive education? Or we can say they are ready to handle children with special needs. So when we talk about school readiness, it is not only readiness of the child, it is the it is depends like how the parents are ready, how the society is ready, how the schools are ready to admit the child's or to cater the child's need in the education system. So it's a complete effort when we talk about the school readiness. So school readiness is basically when we try to develop the required skills for the schooling. Like suppose that what are the skills required for the schooling? First of all, the first skill is required like sitting behavior. First, the child should sit at a place for a required time. So like sitting behavior, then child should give the attention in the classroom. He should be communicate with his peer group, like he should interact in the classroom activities. He should have the appropriate physical skills as per his age. So these are some skills where we work collectively. Like suppose that in this school readiness area, it is not only the part of a special educator, it's a combined effort. When we talk about the school readiness, it should be a combined effort of all the stakeholders like parents, teachers, special educators,
community, even in the other staff of the school. So complete cooperation is required if we talk about the school readiness, right? So, Pramod sir, I'm audible now. Hello. Yeah, you are Okay, audible. okay, yeah. In case there is an issue, please let me know. Yeah. All right. Okay. So now the question is, how can we develop these skills? How can we work on these skills of a school readiness area? So early we have to start on the self-care activities. We have to try our best to make the child independent, in especially in the toileting areas. He should able to indicate his toilet need. Okay. And then we have to work on the social interactions. Suppose that in the classroom, it is required that our child will interact with his peer group or with the teachers. He should follow the instructions. When the teacher give any instruction, they have to follow. So we have to work upon the instructions, imitation areas. We have to work upon the social play, and we have to work upon the areas like suppose that emotion regulation. This is the very important. So we have to teach the child to regulate his emotions, like how to behave in the classroom situations. So it will come when we give the exposure to the child. Suppose that if we think that without sending the school or without providing the situation, we feel that the child should behave in a proper manner, or the child should behave as per the, you can say, the desirable behavior, in manner of desirable behavior. So it is not possible. We have to provide him exposure of mainstream schooling. So in this case, we have to start the group classes or peer interaction with very early stage. Like suppose that when the child is 2 year or 3 year, when then we have to start. We have to ask our therapist to provide the group sessions when the child is getting instruction in a group situation. We have to make the child learn the skills like as per the sharing, greeting. All these skills are required. And then the very interesting is that most of, and this is the core deficit area, our children doesn't want to interact with the others. So we feel this, our children doesn't want to interact with the other peer group. So this is not like this. I feel the children, they like that, like we know, like we like to make friends, we like to go outside. Our children also like to go outside, they also like to make friends, but they doesn't know the how to interact, how to approach the peer group. So you have to teach the right manner, right appropriate way how to interact with the peer group. So this will come once you provide the exposure to the child. Take the child in your family parties, take the child in market, take the child in the park and let him play with the other children. Yes, there are so many issues, and it was like as I said, our society is also not very cooperative in this way. Sometimes it is also very, sometimes it is very cooperative also. I have seen many cases where society, their neighbors, their peer groups, all are doing the great job to help the child. But same time, we heard the news that neighbor are complaining about our child's behavior. Suppose that he is stimming, he is making sounds. Recently, in the last 2 3 days, case was came from the Pune, that a neighbor complained about the child's behavior, that he is making noise, and he complained in the police. So once the police came, then the mother of the child explained them that this is the behavior of the child and he is not doing it knowingly. Then they were, even then they were not ready to understand. So it will make a big issue. So there are some issues, but we have to keep on trying to make the child learn with their peer group, society, and neighbors. So now, if we talk about specifically in the cognitive readiness, or we can say the readiness in the area of academic, then we have to work upon the pre-reading area, pre-writing area, or pre-math concepts. So how to start pre-reading skills? So in this area, we have to start with the, like there are mainly two approaches. It will depend on the learning style of the child. One is phonetic approach, and second is sight word, or you can say whole word approach.
it is tradition, and some people think that our children with autism are visual learners, and it is not always correct. Yeah, they have good visual skills. So it depends, like how we make the child learn the reading skill and which approach we are using. So generally in the school curriculum, we have to think about the school curriculum also. So generally in the all preschools and mainstream schools, now they are uh, using a phonetic approach. So when you are using phonetic approach, then you have to focus on the sounds of the alphabets. So you have to start like phonetic approach. It has many skills. So if you start with early, then first is like phonemic awareness. So you have to teach the child to understand the sounds of the alphabet. Like suppose that A says A, B says B. So in the last webinar, I discuss this in detail. Like suppose that you have to make a scrapbook or make a visual charts of the sounds. Like suppose that A makes A sound, so you have to put the symbols of the pictures. Like suppose that A for apple, A for aeroplane, A for ant, A for eggs. So all the picture you have to put in the scrapbook. Like same for the all the alphabets. So once you focus on the phonemic awareness, it will be easy to learn the reading skills for the child. And like one parent was asking, like how to, like one parent was asking how to make my child interest in reading, like how he will take the interest in reading. So in case like this is what when we see that our child is not taking interest in reading, actually it is not that the child is not taking interest. It is that we the way we are teaching the reading to the child, it is not as per his level, or it is not making him making him interest or making him like to this strategy. So we have to think of there are so numerous strategies when we can make the reading really fun activity. So we have to, there are so many games in which we can play with the alphabet sounds. Like suppose that when we talk about in the next step, like sound rhymings or rhyme identification, sound associations, then we have to play a game. Suppose that like we are teaching the child to associate two sounds. Like suppose that we are associating a sound with a, like app, at, am, and. So instead of teaching this with the flashcards or with the tabletop activity, you have to play a game. Like suppose that okay, there are like suppose that there is a first demonstrate the child. Suppose that okay, mama and papa will play a game. Mama say a sound, papa will say for sound. Then we will associate this like a per. Mama ne bola a, papa ne bola per. So it is made a. So initially encourage the child to make a sound. Suppose that okay, you only say one sound. So suppose that child is Vian or the any child. So okay, when you say a, so child is making a sound. Then suppose that his father is making pa sound. Then mama is associating. Mama is saying okay app. Again the child say app. Papa says the. Then mama says add. So it will make the child to associate with the activity. It will make the child to take interest in the activity. So you can start with these skills. So there are so many strategies. Like suppose that if we talk about only reading, then it will require minimum 2 to 3 hours. If we talk about only 3 reading skills, so we have to teach the sounds. So if we are talking about the schooling, so we have to focus. I would suggest we should focus on pre-academic skills. In reading, we have to focus on the phonetic approach. And when we talk about pre-writing, then you should also focus on the strategies which is really helping for the helping the child to make him learn in appropriate way. Suppose that now when we are in the last webinar also we discussed, like when we are teaching writing, then we have to work upon the pre-writing skill, like make the child to play with the clay, lots of duff activity, lots of color activities, thumb painting, finger painting, like fine motor activities to clip the clothes, to use the clips, to use the to open the bottle caps, lids. So we have to involve the child in lots of fine motor activities. Once the grip is ready and the child is grasping the pencil properly, then we can start the writing alphabet or numbers. Before alphabet and numbers, there is a pre-writing
pattern, like how to make a standing line, sleeping line, curve, okay, then circle. So we have to go in a way then that so that we can link the our learning with step by step. So once you are teaching the child standing line and sleeping line, then teach the child to write L I T, so the alphabet which are linked with the sound with the learn activities. Like suppose that he had learned the standing line or sleeping line, then we have to also teach him to start with L, T, and other. When we are teaching the child making C, simple curve, then we can teach the child to make C, Q, D. So these are the alphabet which can be taught through this activity. So these are the activities, and as it is a question answer session, so I will not make it like a presentation. So I would suggest if Pramod sir, can we allow some parents to ask the questions which they are. Actually, there are questions in chat box. So let's first go through those questions, and then we will Okay, okay, allow our parents. Okay. So let's go okay, to the chat box. okay, okay. Yeah, I'm seeing here a couple of questions which are actually not related to today's topic. So No we are issue, not no going issue, to take those. Yeah. no issue, no issue. So yeah, Yeah, one parent was asking how to improve the eye contact and sitting behavior. The second parent was asking sitting behavior. So if we combine this activity, eye contact and sitting behavior. So obviously these are the skills which is required for preschooling or school readiness. So if we talk about eye contact, especially how to develop the eye contact, so always we have to assess that whether the child is able to follow your instruction or not. So before starting eye contact, you have to see that is the child responding to your responding to your instructions or responding when you call his name, his or her name. So once the child is able to respond his or her name, then you can start teaching him the eye contact. So when you are teaching eye contact, always use some bright objects, and like every children, not only it is linked with the children with autism that they like visual, they like auditory toys, but all children like uh, visual toys, all children like the toys who are making which are making sound. So you have to take the things or take the objects who are making sound, they are bright color, there are some lights. So you have to start the tracking activity with the child. So once you make, suppose that once you place any object who is making any sound or placing any different lights, so it should like we have to track this object in front of the eye line of the child. So it is very important. I'm not talking about the tabletop activities like when we are teaching academic to the child, then how to teach the eye contact. I'm taking the pre-request area. So suppose that if we are initially we are targeting that the child should give eye contact to our instructions, to the things. Generally it happens like sometimes parents complain that sir मैम तो इसके सामने कुछ भी करते रहते हैं, इसको बोलते रहते हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट हम ट्रैक कर देते हैं, he doesn't look. So initially teach the child to respond to the sounds. ठीक है, so different sounds. आप उसे मत देखिए कि वो आपको आई कांटेक्ट प्रॉपर दे, आप बस ये देखिए क्या इसने रिएक्ट किया हमारे साउंड्स के ऊपर, क्या इसने हमारे जो विजुअल्स हमने इसके सामने रखा क्या उसने उसको ध्यान से देखने की कोशिश की. तो ये सारी चीजों पे हमें पहले टारगेट करना है, और इसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं. बहुत सारे आप जैसे मैंने बोला कलर चीजें आप ले सकते हैं, ऑडिटरी टॉयज आप ले सकते हैं, आप इवन घर की एक्टिविटीज ले सकते हैं, बहुत सारी. आप कोशिश करिए बच्चे को डायरेक्ट आई कांटेक्ट. हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे का सर पकड़ के और उसको आई कांटेक्ट सिखाना शुरू कर देते हैं कि नहीं देखो देखो मेरी आईज में देखो. जनरली मैंने देखा उसी पर स्टार्टिंग में यही करते हैं कि नहीं मेरी आईज में देखो लुक. वो हमें नहीं करना है, हमें पहले बच्चे को इन्वॉल्व करना है विद द एक्टिविटी. सपोज दैट इफ यू आर like suppose that you have put 5 glasses in front of the child, then simply ask the child to put a spoon in every glass, in each glass, like suppose that one by one. So if he is looking down, it means he is giving eye contact to the activity and he is responding to your instruction. So initially I would suggest work on the responding skills. This is the very prerequisite skill for eye contact.
Once the child is involved, once the child is ready to respond to your instructions, then you can teach. Like suppose that if you talk about specifically writing skill, it requires lots of eye contact, coordination, attention, focus activities. So initially on the you should not start with the simple paper pencils. You should start with the activities. Like suppose that just use the blocks to make the alphabets or numbers. Suppose that we are using block to make number one. We are using blocks to make number two. They are Jenga blocks. They are very useful to make the alphabets and numbers. Jenga blocks जो होते हैं, simple wooden के blocks, that are those are very helpful. And then like we have to teach the child motor coordination skills also. So when we talk about the writing, it involves so many skills. It involves attention, eye contact, motor planning, your motor coordination skills, fine motor. Okay, so all these skills, how can we combine? How can we combine this in our training? So you have to focus on the physical training also. So suppose that if we are trying to make the child circle, so put a black tape on the floor. Black tape से आप floor पे बना सकते हैं एक circle. Then ask the child to move on this black line. Like suppose that हमने एक black line से L बना दिया floor पे और फिर हम पूरा body से बच्चे को बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को जो sensory issues होते हैं वो भी उसमें कैचर हो जाते हैं, right? चलिए, right. And I will take some more questions from the chat box. There are so many questions. Alok sir, I think join, and he is saying you are doing a very good job with the team. So thank you so much, Alok sir, joining today, and your blessings are very important for us. Thank you so much for joining. And this is a parent group, Autism Parents Forum, who are doing a wonderful job empowering their parents. Thank you. And like some parents asking how to improve reading skill. So again, I am saying like how to improve reading skill. It requires so many skills. Start with the phonemic awareness to respond to identify the sounds of the alphabet. Then teach the child to associate two sounds, like I said, at, app, or take only one sound at a time. Suppose that if you have taught the child a sound, then add all the other sounds with the a, like add, app, and, am. Once you taught the child o sound, then associate all other sounds with the o, like o, odd, on. Then move on to CVC word, 3-letter words, which we say. So this is like called vowel and consonant sound, VC words, then CVC word, consonants, vowel, and then consonant, like CVC, like bat, cat. In this also, हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं करना कि लाइक बैट हो गया, देन हमने गॉड सिखा दिया, एक एक साउंड पर फोकस करना है. इनिशियली a sound, a के साथ भी हमने already the child knows at sound, so we have to make the words with at sound. We have to try as many as words which we can make with the at sound, like cat, bat, hat, mat. Then focus on next sound, add, cat, pad, rat. It should not necessary that it should make a meaningful. You can, once you are teaching the association of the sound, then you focus on the sounds only. Your focus is not on the meaningful. You can try as much as possible. Like suppose that you can try the visuals with the sounds. Like suppose that when we are teaching cat, you should put the cat picture also, bat, then bat picture also. So once you are starting with the 3-letter sounds, then start with blends like cl, pl, pl, l blend sounds. So हमने cl के साथ बच्चे को add करना सिखा दिया, like cl, app. बच्चा already short vowel sounds हमारा सारा जानता है, तो clap हो गया, clod हो गया, क्लब हो गया, क्लिप हो गया, तो हमने उसको डिफरेंट साउंड, उसकी बहुत सारी फन एक्टिविटीज हो सकती हैं. आप बच्चे को टेबल टॉप पे भी, नोटबुक पे भी करा सकते हैं, फ्लैश कार्ड के साथ करा सकते हैं. जैसे मैंने बोला था, एक गेम खेल सकते हैं कि चलो पापा एक साउंड बोलेंगे, मम्मा एक साउंड बोलेंगे, और फिर आप उसको ज्वाइन करोगे. पहले आप खुद बच्चे के साथ ज्वाइन करो, फिर बच्चे को बोलो. समझ, पापा ने बोल दिया क, मम्मा ने बोल दिया अप, अब बच्चे को बोलो आप इनको ज्वाइन करो का, तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा. वो लगेगा कि हाँ, पेरेंट्स भी हमारे इन्वॉल्व हैं. आप उसके पीयर ग्रुप को, घर में जो उस बच्चे के कजिन्स हैं, फैमिली में जो मेंबर्स हैं, उनको कोशिश करिए कि वो उसके साथ इंटरेक्ट करें. So in this way we can teach. Like when we use the blends, then we can start. There are so many skills like diphthongs we can use, then magical e sound words. There are some silent sounds. So we have to go step by step. And same time, when we are teaching the reading skill, we have to teach the comprehension skill also. So once the child is
learning the sound CVC words, you have to make simple sentences with the CVC words. Like suppose that one side you are teaching phonetic sound and some side words you have taught like I, am, or he, she, it. So we can ask the child to read simple sentences like a bat, एक bat का picture है, a big bat, तो एक big bat बना हुआ है, a cat, a fat cat, फिर आपने थोड़ा सा और उसको कर दिया a fat cat is on the mat. तो स्टेप बाय स्टेप जो बच्चा सीखता जा रहा है उसको हम सेंटेंसेस में लैंग्वेज में लेके आते जा रहे हैं. और एक चीज मेरी ट्रस्ट करिए आप कि वंस यू स्टार्ट टीचिंग द सी, हमारा क्या होता है हम स्पीच में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बच्चे की साउंड्स निकलवाने पे, सेंटेंस यूज करने पे. ठीक है, हम जब बच्चे को रीडिंग स्किल पता लगे बच्चा अभी तक साउंड से अवेयर नहीं है, वो बच्चा सिंपल अल्फाबेट्स के साउंड अभी फोनेमिक अवेयरनेस भी नहीं है और हम उसको लैंग्वेज में सेंटेंसेस यूज करना सिखा रहे हैं, तो वो भी ठीक है. बट अगर आप प्री रीडिंग स्किल को लैंग्वेज के साथ एसोसिएट कर देंगे बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा. और आपने जो लर्निंग, मोस्टली पेरेंट्स हमारे कंप्लेन करते हैं कि ये बोलता है लेकिन क्लास में नहीं बोलता, वैसे ये सारे सेंटेंसेस बोलेगा लेकिन क्लास में नहीं बोलता है. सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस एरिया व्हिच जनरली वी मिस. लाइक वी हैव टू टीच द प्री एकेडमिक स्किल्स विद द general language and communication. Okay, so when we, and this is a very known fact, like if we involve our reading with the our day-to-day activities, then it really makes fun and the child learns easily, right? Like one parent is Smita Shahu is asking, after he understand phonic sound, how to make him interest to read sentences. So it is the same, like I've already answered your question. Start simple sentences. The sound हमें wait नहीं करना कि जब बच्चा पूरा reading कर लेगा then only we will start the making him sentence reading, making him read sentences. So we have to start with the CVC word also, and use lots of visuals. Like lots of visuals means like you have to provide the child visual feedback. Suppose that what the child is reading, he or she has to link with the visuals. Okay, then it will be like one parent, the question which we had in advance, one parent was asking that how to deal with the hyperlexia. Okay, so hyperlexia basically a reading and reading comprehension disorder. So reading comprehension area, like suppose dyslexia, it is common. Sometimes learning disability is also associated with the autism ASD spectrum. So we have to think about to accommodate those difficult areas also in our teaching, right? So one parent is asking like my child speak repetitively, speak relevant, making noise. So like the child is not first of all I should make very clear, the child is not speaking irrelevant anything. There is nothing which the child is speaking irrelevant. Yes, you have to teach the child that you have like you have to follow the certain, you can say like हम लोग कहते हैं कि स्कूल में you have to follow the certain norms, you have to follow the classroom activities, you have to follow the teacher's instruction. So you have to teach the child like how to speak, when to speak, and how or just provide a child ideal, or you can say a role model. Like suppose that when we talk about when the child has nothing to do and you are not interacting with the child, there is no one to interact with the child, then you can say he is making relevant sound. But it is not like that. You have to see whether what he is want to communicate with these irrelevant talks, right? Like one parent, Preeti ji, is asking, all schools ask for shadow teacher for child, even in playgroup. Should we agree to it? Yeah, it's a very important question. See, actually, the concept of a shadow teacher was to help the child or to accommodate the child in mainstream school. But unfortunately, the schools has taking it granted, and now they are using this shadow teacher term to segregate the child, you can say. And if you ask me, without making any specific note, if you ask me, I would suggest in early stage you should not agree to provide the shadow teacher. I feel you can send the child to special school, or you can train the child at home schooling instead of sending the child in school without
with the shadow teacher. See, concept is very good, but in India, we are not following it. Concept of shadow teacher is completely destroyed. They are just using, like suppose that कम से कम स्पेशल स्कूल में हमारा बच्चा ये तो करेगा कि हाँ हम एक ग्रुप में खेल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो शैडो टीचर के साथ हैं, क्लास में भी शैडो टीचर है, इवन उनके जो हेल्पर्स हैं, जो क्लास में आया वगैरह हैं, वो भी उस बच्चे को टॉयलेट ले जाने के लिए रेडी नहीं है। हमने एक बीच में एक शैडो टीचर्स के लिए वर्कशॉप किया, देन ऑल द शैडो टीचर वर कंप्लेनिंग अबाउट दिस कि सर हमें तो आया बना के रखा हुआ है, ये लोग तो स्कूल में आया तक हमें कोऑपरेट नहीं करते, वो तक हमारे बच्चों को टॉयलेट तक लेके नहीं जाते, हमारे बच्चों को हमें ही लेके जाना पड़ता है। सपोज बच्चा जब भी थोड़ा सा क्लास में कुछ बिहेवियर शो करता है, देन द टीचर आस्क मी टू टेक द चाइल्ड इन द प्लेग्राउंड। सो इट इज हैपनिंग लाइक दिस। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा ये गलत है, बट मोस्टली टाइम इन माय एक्सपीरियंस 99% concept of shadow teacher is destroyed. And yes, if we properly execute, we properly plan, then it is possible that we can use the shadow teacher as a learning aid. We can say learning aid, or we can say as a support for the learning of the child. So training and proper planning is very important. Okay? Sir, Yes. Yes. yeah, sir, I just want, okay, someone is asking something? Yeah. No, I want to share some. Yes, yes. My name Yeah. is सहबा, मैं लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ स्कूल में शेडो टीचर तो नहीं, हेल्पर का कंसेप्ट है जो फैसिलिटेट करते हैं। टीचर ही इंचार्ज होती है, बट वो लड़कियाँ जो हेल्पर के तौर पर हमें दी जाती हैं, ये 16-17 साल की होती हैं, 14 से लेकर 16-17 साल 12 तक की बच्चियाँ होती हैं, और ये Right. फैसिलिटेट करती हैं। तो बेसिक थोड़ी बहुत अपने बच्चे के बारे में हम ओरिएंट करते हैं, बाकी वो पूरा उसको फैसिलिटेट करते हैं, यूजिंग द टर्म अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो So how do you feel it is helpful for our children? पार्डन नहीं समझ सुन पाई। I am asking, do you feel it is really helpful for our child and school is planned this very well? यस, क्योंकि जब बच्चे अपने आप खेलते हैं या टीचर समझा रही है, तो वो जो मेरी बेटी के साथ बैठती है उसकी रीति दीदी, वो उसको हेल्प करती है फोकस करवाने में, या बच्चे अगर आपस में क्वेश्चन बातें कर रहे हैं तो कहेगी नमिता तुम भी बताओ जरा इसके बारे में, तुमने कल क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से करें तो शैडो टीचर बहुत एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकता है बच्चे की लर्निंग के लिए। बट मोस्टली स्कूल में अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि हम उसको प्रॉपर प्लान नहीं करते, हम एक बच्चे को, एक शैडो टीचर को एक तरह से बच्चे का पर्सनल असिस्टेंट समझ लेते हैं, और वहां पर हम अलाउ ही नहीं करते बच्चे को उसके रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको पीयर ग्रुप से एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सिचुएशन है, अगर हम प्रॉपर्ली उसको एग्जीक्यूट करें देन इट कैन रियली मेक सम फ्रूटफुल चेंजेस, राइट? Right. Next question, sir. Yes sir, you are also asking something, you can ask. Yeah, actually from my experience, I was just thinking like जब मेरा बेटा नर्सरी में गया तो ठीक है वो हाइपर एक्टिव था, नॉर्मली उस एज में 3.5 and 4 वो हाइपर एक्टिव होते ही हमारे बच्चे ज्यादा। लेकिन स्कूल को भी ये मालूम है कि मतलब आज की डेट में कि अगर ये बच्चा स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, इसको ऑटिज्म है, वो सीधा हाथ खड़े कर देते हैं, और जबकि वो हर जगह कहते हैं कि नहीं हमारा इंक्लूसिव सेटअप है, और एज पर राइट टू एजुकेशन हमारे सही बच्चों को राइट है कि वो नॉर्मल स्कूल में भी जाके पढ़ सकते हैं, अनटिल अनलेस की एक डिसेबिलिटी का भी एक लेवल होता है, जब तक वहां पर ना हो तो हम अननेसेसरीली उसको स्पेशल स्कूल में नहीं डाल सकते। अब हमारे साथ चैलेंज क्या होता है कि हमारे बच्चों को अगर न्यूरोटिपिकल बच्चों का साथ मिलता है तो वो जल्दी सीखते हैं और उनमें इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, राइट? अब हम ऐसे किसी भी स्कूल में जाते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ नोएडा की, ये भी नहीं कि मैं किसी टियर 3 सिटी की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी चैलेंजेस हैं कि नोएडा के अंदर ही मेरे को एक स्कूल नहीं मिला, और जो मिले 2-3 स्कूल वो यहाँ के टॉप के स्कूल हैं और बहुत महंगे स्कूल हैं। अब जिसमें हम लेके गए वहां पे क्लास में उनको ये है कि आप शैडो टीचर लेके आओ। अच्छा, उनको पहले तो ये नहीं मालूम कि शैडो टीचर भी कुछ होता है, और जो आपने बताया वो आया को ही शैडो टीचर की तरह से बिल्कुल हम तो एक्सपीरियंस किया है बहुत ज्यादा। तो हमें खुद जाकर के बैठना पड़ा, तो बड़े मुश्किल से परमिशन लेनी पड़ी कि ठीक है बीइंग ए पेरेंट हम उसको असिस्ट करेंगे। बट होता क्या है कि अगर आप जाके बैठो या आप किसी को असिस्टेंट को लेके बैठाओ,
वो बच्चा क्लास में उसका होना या ना होना एक बराबर होता है, टीचर को कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ाना है, डांटना है, कुछ बोलना है, कोई मतलब नहीं होता। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं पेरेंट, क्योंकि स्कूल भेजना ना भेजना एक बात बराबर हो जाती है, लेकिन और गवर्नमेंट का रूल भी है कि नहीं, आप अपने बच्चे को मतलब वहां पे एडमिशन दिला सकते हो, इवन डीजी कैटेगरी में दिल्ली के अंदर एडमिशन मिलते भी हैं, बट पेरेंट्स आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट। यस सर, सी सर एक्चुअली क्या है जो मैं उसी चीज को माइंड कर रहा था कि हम प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं अपने सैरो टीचर को। लाइक सैरो टीचर का कोई कोर्स तो है नहीं, जैसे मैम ने बोला कुछ स्कूल में अगर ये चल रहा है कि जैसे मैम ने बोला कि वहां पर गर्ल्स को रखा हुआ है जो 14-15 ईयर की हैं, जो जस्ट 10+2 हैं या सिंपल ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो मे बी बहुत कुछ स्कूल अगर कोई सेंसिटिव प्रिंसिपल है, अच्छा है, जो बच्चों की नीड्स को समझता है, उन्होंने ट्रेन किया, मैम बोल रहे हैं अच्छा इफेक्टिव है, इट्स अ ग्रेट साइन। बट मोस्टली ठीक है, स्पेशल एजुकेटर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, स्पेशल एजुकेटर जो एज ए शैडो टीचर काम करते हैं, वो वही स्पेशल एजुकेटर हैं जिनको स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिल रहा है, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और होता क्या है कि इन स्टार्टिंग में टीचर सपोज स्पेशल एजुकेटर ने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उसको अभी इनिशियली उसने ट्राई किया बट कहीं स्कूल में उसको ओपनिंग नहीं मिल पा रहा है, तो उसने एज ए शैडो टीचर काम करना स्टार्ट कर दिया। होता क्या है, 3 मंथ्स के बाद उसको कहीं एनजीओ में किसी स्कूल में जॉब मिल गया, वो छोड़ के क्विट करके चला गया। मोस्टली टाइम तो ऐसा होता है, यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स भी है, हम अपने प्रोफेशनल्स को भी ये बात कहना चाहेंगे कि कम से कम 1 मंथ का एडवांस नोटिस तो दे दो, पता लगे पेरेंट्स को बताया ही नहीं, सैलरी ली और कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे अगले मंथ से। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो मोस्टली हमसे यही डिमांड करते हैं, सर शैडो करवा दो। पता लगे 1 अकेडमिक सेशन में बच्चे के 4-4, 5-5 शैडो टीचर वहां पर चेंज करने पड़ रहा है। तो और एक दूसरा जो आज के हम ये तो शैडो टीचर की बात हो गई, जो हम आज के टॉपिक पे जैसे आपने कहा कि मोस्टली स्कूल्स रेडी नहीं है, हम क्या करें, स्कूल भेजें या उस कंडीशन में हमें क्या करना है। मैं वही कहूंगा कि अगर हमने स्कूल रेडीनेस पे प्रॉपर काम नहीं किया, ये मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर हमारा बच्चा सच में स्कूल के लिए रेडी नहीं है और हम सिर्फ एक इंक्लूजन नाम के लिए बच्चों को भेज रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी आर नॉट अचीविंग एनीथिंग इन फ्यूचर। मोस्टली जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चा कम से कम सोशल स्किल सीखेगा, कम से कम पीयर ग्रुप के साथ बहुत सारी अदर स्किल सीखेगा, नहीं। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली देखेंगे, मेरे पास बच्चे हैं जो 15+ के हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, और उनका अभी लेवल सपोज बच्चा जो 8th क्लास तक उसको प्रमोट करते गए, अब बच्चा जब 9th में आया, सीबीएसई का फॉर्म नहीं फिल करने देते स्कूल वाले, फिर बोल देते हैं कि आप इसको एनआईओएस के थ्रू करवा दो या कहीं स्पेशल स्कूल में डाल दो। उस टाइम तक क्या होता है, बच्चा का इतना ज्यादा सेल्फ एस्टीम लो हो चुका होता है, बच्चा सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ सो कॉल्ड, जिनको कुछ लोग बोलते हैं हायर फंक्शनिंग है, ठीक है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो इनिशियली क्या होता है, जब बच्चा स्कूल के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्लास जो करिकुलम है उसके साथ जब मैच नहीं कर रहा है, वो गैप धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पता लगे बच्चा हमारा अभी जाके 2nd ग्रेड में रीडिंग अच्छे से सीख पाया है, लेकिन 2nd ग्रेड में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए। जब तक हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा पाते हैं, तब तक पता लगे 4th और 5th में इम्प्लीकेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, वहां तो प्रॉपर स्टेटमेंट सम्स आ जा रहे हैं, वहां पर प्रॉपर रीजनिंग और थिंकिंग की स्किल्स इन्वॉल्व हो जा रही है हमारी लर्निंग में। तो ऐसे टाइम पे मैं सजेस्ट यही करूंगा, अगर हमारा बच्चा स्कूल के लिए रेडी नहीं है, आजकल अगर हम थोड़ा सा रिसर्च बेस देखें तो यूएस में बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है होम स्कूलिंग का, और एज ए प्रोफेशनल मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मेरा मेन पर्पस ये नहीं है कि मैं एज ए प्रोफेशनल अपनी क्या चीजें रखता हूँ, मेरा मायने मुझे ज्यादा मायने करता है कि पेरेंट्स के लिए क्या ज्यादा बेटर, हमारे बच्चों के लिए क्या ज्यादा बेटर है। हमें होम स्कूलिंग ऑप्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैं ये नहीं कह रहा, आप स्पेशल स्कूल, बहुत से स्पेशल स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है स्पेशल स्कूल नहीं है, होम स्कूलिंग मेट्रो सिटीज में इजी नहीं है, जब पेरेंट्स हमारे वर्किंग होते हैं दोनों, तो बच्चे की होम स्कूलिंग इजी नहीं है। तो हमें ऐसे कुछ चीजें देखनी है कि सपोज आजकल गवर्नमेंट स्कूल का जो स्कोप है वो हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट स्कूल ऑप्ट करना चाहिए। मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आजकल अच्छा काम कर रहे हैं। आप ईडब्ल्यू आप स्पेशल कैटेगरी में आजकल बच्चों की 25% सीटें रिजर्व हैं, उसमें 5% सीटें सीडब्ल्यूएस रिजर्व में, सारी सीटें खाली जाती हैं, वहां पर एडमिशंस नहीं होते हैं जैसे आपने बोला। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को ऑप्ट करना चाहिए। हम लोग जो हमने जो माइंडसेट बना रखा है कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होगा, आपको वो चेंज करना है। वहां पर जाके अगर नहीं है तो करवाइए, थोड़ा बहुत हमें काम करना पड़ेगा। जब तक हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपनी चीजों के लिए
कम्युनिटी में, स्कूल्स में अपने राइट्स के लिए जाके फाइट नहीं करेंगे तब तक हमें मिलने वाले भी नहीं है। हम सोचें कि बस हम उस चीज से भाग लेते हैं। हमें कोशिश करनी है, सबको नहीं कर सकते बट कोशिश करनी है कि जितना पॉसिबल हो हम वो करें। और NIOS में इस बात को आज हमने होम स्कूलिंग का रखा था, NIOS बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे बच्चों के लिए। मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस चीज से। तो ये NIOS क्या है? हाँ जी, NIOS ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। इसमें होता क्या है कि आपको फॉर्मल स्कूलिंग की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस कुछ स्टडी सेंटर्स पर होते हैं, नहीं तो आप घर पर भी बच्चे को ट्रेन कर सकते हो, आप एजुकेटर्स के थ्रू बच्चे को ट्रेन कर सकते हो। आपको एग्जाम देना होता है एंड वहां पे उनके 3 लेवल हैं बेसिकली, OBE ओपन बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो OBE में वहां पर फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं होती, थर्ड और फोर्थ क्लास नहीं होती, 7th और 8th क्लास नहीं होती। वहां डायरेक्ट OBE लेवल A, B और 3 लेवल है। OBE लेवल A इज इक्वल टू थर्ड क्लास, OBE लेवल B इज इक्वल टू 5th क्लास एंड OBE लेवल C इज इक्वल टू 8th क्लास। तो हमें क्या करना है, हम बच्चे को प्रिपेयर करते रहें और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चे को बहुत ज्यादा हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। उनका जो करिकुलम है इट इज ऑलरेडी अडेप्टेड एंड हमें लगता है कि हाँ बच्चा हमारा थर्ड क्लास के लायक रेडी है। अभी उसमें एज क्राइटेरिया नहीं है, आप 12 प्लस बच्चे को भी थर्ड क्लास में एडमिट करा सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको जब लगता है कि आपका बच्चा थर्ड क्लास के लिए रेडी है, आप उसे थर्ड क्लास का रजिस्ट्रेशन कराइए, आप एग्जाम दीजिए, आपको थर्ड क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और रिकॉग्निशन इक्वलेंट है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं CBSE से नहीं किया है तो बच्चे को, मैं हर बच्चे के लिए नहीं कहता, जो बच्चा CBSE से कर सकता है, स्कूलिंग मेन स्ट्रीम कर सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा वो है ही, नो डाउट, ठीक है। बट हम बहुत ज्यादा हमने देखा है कि बहुत सारे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ऐसे मैंने हमारे साथ ऐसे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा एक तरह से डिप्रेशन में भी आ गए हैं कि स्कूल उनको इतना तंग कर रहा है। मैंने वो पेरेंट्स देखे जो हमारे पास थेरेपी सेशंस में आके रोते हैं कि सर हम परेशान हो गए हैं, स्कूल आए दिन हमसे इतनी कंप्लेन करता रहता है, अब हम करें क्या, इसको स्पेशल स्कूल में भी डाल नहीं सकते, मैन स्ट्रीम में सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्या करें। तो उन पेरेंट्स के लिए ऑप्शन है एक, जिसको हम बिल्कुल, ये कोई डिसीजन एक दिन में लेने वाला नहीं है या जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं है। हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के, अगर लगता है कि हाँ अगर स्कूल सिर्फ हम भेजने के लिए स्कूल नहीं, हम NIOS ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी वहां पर हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनको हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो आगे कुछ पेरेंट्स ने पूछा था कि क्या आगे फ्यूचर क्या है, हायर एजुकेशन क्या है, तो हायर एजुकेशन का बहुत अच्छा स्कोप है। अब वो टाइम नहीं है जब हम सोचते थे कि हमारा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है, आगे जाके कोई कोर्स नहीं कर सकता। तो उसके लिए ऐसा नहीं है, NIOS के बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, इवन हर यूनिवर्सिटीज में है। DU में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल करके उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जहां पर वो स्पेशल नीड बच्चों को वो वहां पर ट्रेन करते हैं, अलग अलग कोर्स की उनकी हेल्प करते हैं और बहुत सारे बच्चे डिग्रियां ले रहे हैं, ठीक है। तो उसकी चीज पे हमें सोचना है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? मैं चैट बॉक्स की बजाय प्रेफर करूंगा कुछ पेरेंट्स अपना माइक अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। सर ओके, मेरे को एक चीज पूछनी है इसी से रिलेटेड। यस सर। ठीक है कि NIOS इज एन ऑप्शन एंड देयर आर कपल ऑफ अदर ऑप्शंस, बट फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों की बात करते हैं हमारे, तो मेरे पास भी बहुत से पेरेंट्स से जैसे इंटरेक्शन होता है, तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि नॉर्मल जो हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है उसी को फॉलो करते हुए CBSE ICSE 10th 12th करा के बच्चे को जो भी कराना है। बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से बच्चे, जैसे अभी आपने कहा हाई फंक्शनिंग होते हैं या माइल्ड ऑटिज्म वाले होते हैं, अगर उनको शुरू में थोड़ा सा सपोर्ट मिले 2-3 साल तक, तो वो आउट परफॉर्म कर जाते हैं एंड स्लोली ग्रेजुअली दे अलाइन विद द मेन स्ट्रीम चिल्ड्रंस, राइट। थोड़ा बहुत रहता है उनमें, बट दे कैन बी, आई मीन एवरेज किड। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ कि सपोज दैट अगर हम दर्श का ही एग्जांपल लें, दर्श ने कितना अच्छा किया, तो जो हम बात कर रहे हैं ना स्कूल रेडीनेस की, जो हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अर्ली स्टेज में एजुकेशन स्टार्ट कर दें बच्चे का, तो हमें आगे चैलेंजेस नहीं आएंगे। हमारा जो टारगेट है, जिसे हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम स्कूलिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज नॉट पॉसिबल इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन इन द एरिया ऑफ स्कूल रेडीनेस। अगर हम स्टार्टिंग से, मैं वही कह रहा हूँ कि सपोज दैट अगर हम 6 ईयर पे जाके ही हम स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेना स्टार्ट करेंगे, या हम 7 ईयर पे जाके सोचेंगे कि हम बच्चे को हम रीडिंग राइटिंग सिखा रहे हैं, तो वो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, वो पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल हमेशा होते हैं, हमारे बच्चों की बहुत एकदम से कहते हैं कि बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स हैं, वो बच्चे कर सकते हैं, मैं
बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपने स्कूलिंग राइट टाइम पे स्टार्ट नहीं की, अगर आपने प्रॉपर स्कूल रेडीनेस एरिया पे काम नहीं किया, बच्चे की स्टार्टिंग में ही एकेडमिक चीजों पर काम नहीं किया, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जरूर लेना चाहूंगा, काफी पेरेंट्स ने चैट बॉक्स में किया है, और ये वैसे भी बहुत क्वेश्चन आता है हमारे पास। मोस्टली पेरेंट्स का एक क्वेश्चन है कि सर हम बच्चे को बिग और स्मॉल नंबर का कॉन्सेप्ट और ग्रेटर और लेस देन नंबर का कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। थेरेपी में भी बच्चों के साथ ही बहुत इश्यूज आते हैं जब हमारे पास बच्चे आते हैं, और वैसे भी मोस्टली पेरेंट्स इसमें काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके लिए मैं वही कह रहा, एक बता दूं थोड़ा सा, कि काफी पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है, बिग स्मॉल एंड ग्रेटर एंड लेस स्मॉलर नंबर का। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इनिशियली ये देखिए कि बच्चे को क्या नंबर का कॉन्सेप्ट है, मीनिंगफुल काउंटिंग का सच में कॉन्सेप्ट है। हम क्या होता है, बच्चों को रटवा देते हैं कि 1 2 3 10, आप ये 10 हो गया, बस नंबर काउंट एंड राइट लिख दो, और फिर हम सोचते हैं कि बच्चे को रिकॉग्निशन नंबर्स का भी है। बट मोस्टली केसेस में मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को मीनिंगफुल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उनको पता नहीं है कि एक्चुअली 4 होता क्या है। उन्हें नंबर रिकॉग्निशन तो है, बट एक्चुअली 4 कितना होता है। तो इनिशियली तो आप ऑब्जेक्ट के साथ, रियल ऑब्जेक्ट के साथ, बच्चे के साथ नंबर्स को एसोसिएट करना स्टार्ट करिए। सपोज दैट आप 4 की बात कर रहे हैं, तो बच्चे से बोलिए क्या मुझे 4 एप्पल्स दे दो। आप मुझे 4 एप्पल में एक और एप्पल हमने ऐड कर दिया, अब कितने एप्पल हो गए, 5 एप्पल हो गए। वहीं पर उसको कॉन्सेप्ट दो, देखो पहले 4 थे बट हमने एक और ऐड कर दिया, नाउ इट इज 5। सो 5 इज ग्रेटर नंबर, जो नंबर ज्यादा है दैट इज बिग नंबर। तो हमें क्या करना है, पहले पिक्चर्स के साथ, ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के साथ पहले करिए, फिर पिक्चर्स के साथ करिए, और उसके साथ नंबर एसोसिएट करिए। पहले केवल पिक्चर, फिर नंबर। सपोज दैट आपने एक तरफ 4 स्टार्स बना दिए, एक तरफ 2 स्टार बना दिए। पहले उस बच्चे से पूछो कौन से ज्यादा है, विच वन हैज मोर, बच्चा पॉइंट कर देगा दिस साइड ज्यादा है। हो सकता है बच्चा को नंबर कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बस क्वांटिटी देख के बता रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको ये बिग नंबर है। वहां पर फिर आप काउंट करके, बच्चे से काउंट करवा के नीचे नंबर खुद से लिखवाइए, अगर बच्चा राइटिंग करता है तो। खुद से लिखने के बाद फिर आप 2 वाले काउंट करिए, सपोज 4 भी लिख दिया, 2 लिख दिया, देन आप बच्चा उसमें डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि हाँ विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज बिग नंबर। और इनिशियली इसमें देखिए 4-5 स्टेजेस हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ बच्चा हेल्प नहीं कर पा रहा है, इनिशियली स्टेप बाय स्टेप करिए। पहले 1 to 5 नंबर्स को टारगेट करिए, विद इन 1 to 5 नंबर बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट करना है, फिर 1 to 10 करना है, फिर 1 to 20 करना है। और इनिशियली जब हम बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए दे रहे हैं, तो गैप ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि हम 1 और 2 में पूछ रहे हैं कि विच वन इज ग्रेटर, हमें पूछना है 1 और 9, 1 और 9 में विच वन इज बिग नंबर, तो बच्चा एसोसिएट ज्यादा बेटर कर पाएगा। ठीक है। एंड देन सपोज दैट जब हम आगे नंबर्स पे जाते हैं, अगर हमें, काफी बच्चों के साथ ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, फिर एक आजकल एक गणित माला करके जोड़ो ज्ञान का एक बहुत अच्छा उनका टीएलएम है, स्पेशली प्री मैथ कॉन्सेप्ट के लिए। जोड़ो ज्ञान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, वो लोग लर्निंग एड बनाते हैं स्पेशली ये मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो उनका एक गणित माला करके आता है, और उनके बहुत सारे और भी मैथ्स हैं, बहुत सारे और ज्योमेट्री मैथ्स हैं, बहुत हेल्पफुल है बच्चे के लिए। तो जोड़ो ज्ञान का जो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल नंबर लाइन बना के एक कॉन्सेप्ट ये दे सकते हैं कि जो नंबर बाद में आता है दैट इज ग्रेटर नंबर। सपोज 1 पहले आ गया, इट इज स्मॉलर नंबर, 10 बाद में आता है तो 10 इज ग्रेटर नंबर। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एंड इस कॉन्सेप्ट के साथ आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिखा सकते हैं। वंस द चाइल्ड इज रेडी विद असेंडिंग ऑर्डर, देन यू कैन टेल द चाइल्ड दैट यस, असेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखते जाते हैं, सपोज असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर लास्ट में दैट इज ग्रेटर नंबर। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू कर सकते हैं, और भी मैं थोड़ा सा डिटेल में, अभी वही टाइम हमारे पास लिमिटेशन है, तो और भी बहुत सारे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली ट्राई करिए, आप लोग सीख पाएंगे। यस, ये जो आपने बताया, ये क्या है, ये कोई ऐप है या व्हाट इज दैट? ऐप तो नहीं है, जोड़ो ज्ञान का बहुत ज्यादा उनके आउटलेट भी नहीं है। एक बेरसराय में इनका आउटलेट है, तो वहां से ये चीजें मिल जाएंगी। और ऑनलाइन आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर वो डिलीवर करते हैं तो। कुछ उनका अमेजोन वगैरह पे ज्यादा नहीं है, आई थिंक गणित माला एक मिल सकता है शायद, बट ऑनलाइन भी इनका नहीं है। ये लोग डायरेक्ट आप फोन करके जरूर आई थिंक ये डिलीवर कर सकते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपके पास होगा तो आप मुझे शेयर कर देना, आई विल शेयर विद एवरीवन। कॉन्टेक्ट नंबर है, बट उसको मतलब यूज करना भी एक सब, अगर आप सिंपल गणित माला मिल जाएगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है उसकी पूरा, वो इसीलिए सेल नहीं करते हैं कि वो पहले ट्रेनिंग देते हैं। सपोज जो स्कूल गणित माला को यूज कर रहा है, सपोज नोएडा में स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहा है गणित माला ट्रेनिंग, तो जब वो जोड़ो ज्ञान के जो टॉयज है, इक्विपमेंट्स उनको यूज कर रहा है, तो वो पूरा पहले स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं आके कि ये जो चीजें, सपोज गणित माला का यूज कैसे करना है आफ्टर कॉन्सेप्ट के लिए, ग्रेटर कॉन्सेप्ट के लिए,
नंबर नेम्स के कॉन्सेप्ट, तो अलग अलग उनकी पूरा ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए वो सेल नहीं करते हैं कि वो प्रॉपर पेरेंट उसको नहीं समझ पाते कि कैसे यूज करना है। राइट राइट। चलिए हम कोशिश करेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं कुछ। या सर जैसे मेरा नाम गौतम है, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। सर जैसे Okay. अभी आपने बताया कि मेरा बच्चा 3.5 साल का है, नॉन वर्बल है, ही Okay. इज माइल्ड ऑटिस्टिक ऑल्सो। और अभी हमने स्कूल डालने की तो नहीं सोची, अभी हम उसको थेरेपीज भी रन करते हैं, उसको ओटी कराते हैं, स्पीच कराते हैं, लैंग्वेज कराते हैं, ओरल मोटर भी कराते हैं। तो इज इट, अभी वो नॉन वर्बल ही है स्टिल अभी भी, बट हाँ, तो ना शाउट बहुत करता है वो चीज़ों पे, और थोड़ी मोबाइल को लेके बहुत ज्यादा वो है, हम मोबाइल देते नहीं है उसको, वीडियो भी नहीं दिखाते, बट भी मोबाइल को लेके बहुत ज्यादा प्रोन है। तो हमें ये लगता है कि शायद ये बाहर के बच्चों के संग खेलेगा या बाहर के बच्चों के संग रहेगा तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब हम इसको प्ले स्कूल में तो नहीं डाल पा रहे, तो क्या स्कूल डाल सकते हैं क्या इसको फिर हम? देखिए सर, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। जैसे अब मैं सबसे बड़ा डिसअपॉइंट इसी बात से हूँ, जैसे आपने भी कहा ना कि हम ओटी ले रहे हैं, थेरेपीज ले रहे हैं, बट अभी स्कूल नहीं डाला है। कहीं पर भी हम ना जिक्र नहीं करते कि हमने एजुकेशन इसका स्टार्ट किया है, यही एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं स्पेशली आपको पॉइंट नहीं कर रहा, ये सब लोगों के साथ है। हम लोग एजुकेशन स्टार्ट Excuse me, करते हैं, या प्लीज। excuse me, sir. I'm Manjula Shukla, and ओके I'm also a special educator, and I was the special parent too. So what ओके the bhaiya is having a problem. So myself, I want to share my personal experience. ओके My son was diagnosed with autism when he was 2.5. ओके So later on, how I had been worked with my child and being autism, how he has been improved, how he has been overcome with this for his autism, and what unfortunately he is no more. He has, I mean, 11th August of his birthday and lost him in road accident in 12th of August. ओके सो प्लीज I had been प्लीज lots ऐड of ऑन व्हाट यू वांट टू से, प्लीज ऐड ऑन। sir, actually, like if we start some therapy, schooling, and some treatment, and so many things are complete if we follow on the perfect one by one, step by step with the child, so them can get cured. Yeah, okay. You are So parent like जैसे भैया cure, so I'm not agree with you at all. We cannot cure no, autism. Cure the. This is a term which is very. no. I'm trying to say I'm trying to say that autism cannot get cured, but we can Yes. reform. We can help the Definitely. child as Definitely. much as we can. Definitely. Ji. Thank I'm you. not trying to Thank you say, for that. and so many and so many new techniques and so many new therapies which I have been done with my child, like stem cell, like HBOT, like MB12 injection, like lots of therapies, and like with lots of assessment is very very important. And assessment is very helpful with the child. Then you can get to know how much autism a child is having. क्या स्कार से autism का, जब हमें बच्चे के बारे में Okay. ये पता चल ठीक जाता है है मैम। कि हमारे बच्चे का जो autism scales है Question. कितने स्केल का है। Hello. Yeah, thank you so much, ma'am. Please. So now let me answer that question. Thank you so much for your feedback. जो पेरेंट आगरा से उन्होंने पूछा था, तो स्कूलिंग क्या करें, स्कूलिंग में हम डालें बच्चे को कि नहीं? तो बिल्कुल आप जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं स्किल पे काम करिए। बच्चे की सेल्फ केयर स्किल देखिए कि बच्चा टॉयलेट नीट कर पाता है कि नहीं कर पाता है अभी इंडिकेट, तो वो सारी स्किल जो मैं पहले बात कर रहा था उन चीजों पे काम करिए, और एकेडमिक जरूर उसका स्टार्ट करिए। आप उसको सिंपल आप हम लोग हमें क्या होता है, हम जनरली वेट करते हैं कि जब बच्चा सेटल हो जाएगा, उसका बिहेवियर सेट हो जाएगा, तब हम उसको एकेडमिक कॉन्सेप्ट टीच करना स्टार्ट करेंगे। या उसको एकेडमिक कॉन्सेप्ट का मतलब केवल रीडिंग राइटिंग नहीं है, एकेडमिक कॉन्सेप्ट का बहुत सारा एक ब्रॉड टर्म है। लर्निंग केवल एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है। हम कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें तो बच्चों को हमें सिखाना है कि कैसे साउंड्स को जोड़ना है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को कैसे पहचानना है, कि समझ लीजिए कैट का साउंड है, ये डॉग का साउंड है, साउंड एसोसिएशन है, विजुअल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं। हम लोग जो मिलके काम करते हैं, ओटी स्पीच सब लोग मिलके हम लोग काम करते हैं, उसकी रिकॉग्निशन स्किल्स पे काम करिए, आइडेंटिफिकेशन पे काम करिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो पे, रेस्पॉन्डिंग पे जो हम बात कर रहे हैं उन चीजों पर काफी काम करिए। और उसको डेली टू जो हमारी एक्टिविटीज हैं डेली लाइफ की, उसमें उसको खूब सारा इन्वॉल्व करिए, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने दीजिए, उसके साथ मिंगल हो जाइए, आप एक्टिविटीज करिए। सिखाने की ज्यादा बच्चे के साथ कोशिश करिए कि आप उसके साथ मिलके उसके साथ एक्टिविटीज उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। पहले आप करिए उसके सामने, उसको बस ऑब्जर्व करने दीजिए, ठीक है? तो ये चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एंड जहां तक अभी मंजुला मैम ने कुछ चीजें की कि
जो भी हम क्योर की बात कर रहे हैं या जो भी हम स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स वी शुड गो विद द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। लाइक जो भी हम HBOT स्टेम सेल में किसी को पॉइंट नहीं करना चाहता, बट दीज आर नॉट डाइटरी, इवन डाइटरी इंटरवेंशंस, दीज आर नॉट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, दीज आर एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज। सो एक्सपेरिमेंट करना हम थोड़ा सा कम करें अपने बच्चों के साथ अगर, और कोशिश करें कि कुछ पेरेंट्स के रिजल्ट्स भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीटली नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ रिजल्ट नहीं हो सकते हैं, बट मैं कोशिश यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, थेरेपीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थेरेपीज आपको कंटिन्यू करनी है, बच्चे को जितना ज्यादा हो सकता है आप पीयर ग्रुप में बच्चे को इन्वॉल्व करिए, उसको आउटिंग सोशल्स पे लेके जाइए। एक हमारा बच्चा है, मेरा फर्स्ट चाइल्ड था, उसने अभी जस्ट 10+2 क्लियर किया है NIOS से, उसने 12th क्लियर किया। मैं आपको बताता हूँ कि वो बच्चे में जो जितनी प्रोग्रेस हुई वो सिर्फ इस वजह से प्रोग्रेस हुई कि उस बच्चे को थेरेपी से भी ज्यादा उसके फादर, मैं सैल्यूट करता हूँ प्रमोद सर को भी, मैं जब इनके पिक्चर्स देखता हूँ फेसबुक पे, हर जगह बच्चे, सर ने एक बार डिस्कस कर रहे थे कि मैं उसको कार में बिठा के बस ऐसे ही घूमता रहा हूँ गाड़ी लेकर के, कहीं कहीं मुझे कहीं नहीं पता, बट हम रोड पे घूमते रहे, उसको बताते रहे हैं। ऐसा ही सेम उन पेरेंट के साथ भी था। वो पेरेंट भी ये थे कि वो पता था कि बच्चे के बिहेवियर इश्यूज हैं, बच्चा कॉपी करता है साउंड्स, इवन वो अपने ऑफिशियल मीटिंग्स में उस बच्चे को लेके गए, अपने ऑफिशियल टूर पे, पता लगे वो अपने ऑफिस के बंदों के स्टाफ के साथ गोवा गए और बच्चे को लेके गए, उन्होंने अपने स्टाफ को इतना अच्छे से सेंसिटाइज किया और हर जगह लेके गए। आज आप उस बच्चे से, जैसे हम लोग कुछ पेरेंट्स कहते हैं ना कि आउट ऑफ स्पेक्ट्रम है, ऐसा बेसिकली कुछ होता नहीं है, बट हाँ, जब आप कहते हैं कि वो बच्चा ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, वो बच्चे ने बहुत ज्यादा लर्निंग टू अकोमोडेट विद द एनवायरनमेंट, उसने सीख लिया है कि एनवायरनमेंट से कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, तो वो एक एग्जांपल है, वो रोल मॉडल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन वेबिनार करके उसको लेके आएंगे आपको उसकी जर्नी के बारे में। और यहाँ पर सिबलिंग का सपोर्ट एक बहुत जरूरी जो बच्चे के लिए है, वो जो बच्चे के सिबलिंग्स हैं, कजिन्स हैं, उसका सिबलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं तो उसमें उसके बच्चे के फादर मदर, उससे भी ज्यादा उसका एल्डर ब्रदर था, उसने बहुत उस बच्चे के साथ काम किया, बहुत पेशेंस के साथ। और आज वो जब इस पे है कि हाँ वो आराम से NIOS कर रहा है, कुकिंग में बहुत अच्छा है, वो पॉलिटिक्स में उसका इंटरेस्ट है, हर चीज कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो अपने आप को अपनी लाइफ को लेके वो खुद डिसीजन ले पा रहा है कि मुझे क्या करना है। तो सिबलिंग्स को भी एनकरेज करना चाहिए हमें कि सिबलिंग्स इन्वॉल्व हो। मैंने बहुत नोटिस किया है कि मोस्टली सिचुएशंस में सिबलिंग्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चे के साथ। मोस्टली पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर हम अपने इसके छोटे भाई को, बड़े भाई को कैसे बोलें, कैसे हम सेंसिटाइज करें कि ये हमारे इस जो सब स्पेशल नीड बच्चा उसके साथ वो इंटरेक्ट करे, वो इसको ले जाना नहीं चाहता है कहीं, वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है किसी को बताने में भी कि मेरा भाई है, छोटा है, उसको ये इश्यूज हैं। तो हमें सिबलिंग की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है अगर हम उससे उस पर बात करें। Right, sir. Right. Okay, now it's 6:05, so Yes, we sir. need to close it. So we can take next Hello. one or two questions. हेलो, Yes. Yeah. माई सेल्फ जयश्री। मुझे ये क्वेश्चन था कि जैसे हम बोल रहे Hello. Yes, yes, please. Someone has muted. Okay, please हेलो don't do सर। that. हेलो सर, मैं Yeah, hello. शशिकांत बोल रहा हूँ सर। Yes, please. हाँ, छत्तीसगढ़ से मैं शशिकांत बोल रहा हूँ सर। सर मेरे बच्चे का माइल्ड स्टेज है, लेकिन सर मेरा बच्चा मतलब बोलता है, वो चीज़ें बोलता है जो उसको याद है, बट कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। वही चीज़ें बार बार रिपीट करता है जो उसको याद है, जो उसको मालूम है, मतलब और Yes. कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ओके, गॉट इट। सो वो तो एक बहुत नेचुरल चीज है सर कि बच्चा वही बोलेगा जो उसने सीखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोशिश करनी है कि उसकी वोकेबलरी को जितना ज्यादा हम बढ़ा पाए उसको बढ़ाएं। और जो हम कहते हैं कि जो हमारा रैशनल कम्युनिकेशन है, टॉकिंग है, जो हमारा हम जो अपने टू वे कन्वर्जेशन करते हैं, जो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, हमें कोशिश करनी है कि वोकेबलरी बच्चे का इंक्रीज करके आप उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात करिए। सपोज दैट अगर ज्यादा नहीं है, आपने एक एप्पल ले लिया, ठीक है, बच्चे को एप्पल पता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, वहां पे आप उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए। सपोज दैट अगर बच्चा वर्बल है, वो बोल रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं व्हाट इज दिस, बच्चे ने बोला एप्पल। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस एप्पल, वो बोलेगा रेड। तो एक तरह से उसको ये कॉन्सेप्ट भी पता लग गया। ओके, एप्पल का हम क्या करते हैं, वो बोलेगा एप्पल हम ईट करते हैं, इज इट गुड फॉर हेल्थ, और ये ईटिंग हमारा जो हम एप्पल ईटिंग करते हैं, इट इज गुड फॉर हेल्थ और नॉट, वो बताएगा यस इट इज हेल्दी फूड। तो ऐसे हम
उसके साथ और कॉन्सेप्ट लाइक सपोज ये 2 एप्पल दे दिया, विच वन इज बिग एप्पल, अब बच्चा बताएगा ये वाला बिग एप्पल है। तो यहीं पर हमने कम से कम 5-6 सेंटेंसेस को कहीं ना कहीं कंबाइन कर दिया। कोशिश करिए डिफरेंट विजुअल्स दिखा के, पिक्चर दिखा के, डिफरेंट सिचुएशंस उसके साथ आप कम्युनिकेट करिए। और अगर नहीं वो इनिशियली बोलता है तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए। सपोज अगर आप उसको बिठा के सामने आप और उसकी मदर बात करिए, मम्मा उसके आंसर कर रहे हैं, बच्चा बस सुन रहा है, आप उसे मेक हिम जस्ट लिसन, मेक हिम जस्ट लर्न। और हमें मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम बच्चे के सामने वो पता लगे हमें सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। मोस्टली केसेस में, जैसे मैं लास्ट टाइम भी इस बात का जिक्र किया था कि मोस्टली केसेस में बच्चा सारा रिसेप्ट कर रहा होता है। वो कहते हैं कि हमारी इनपुट मेमोरी में सारा आ रहा है, वो सारा इंटरनल मेमोरी में जा रहा है, वो सारा सीख रहा है, अभी स्टोर हो रहा है। जब बच्चे का कम्युनिकेशन आएगा, जब बच्चा इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा, वो सारी चीजें जो उसने ऑब्जर्व की हैं, सीखी हैं, वो बोलेगा फिर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? Now it's 6:10. Hello, So sir. we'll take only one last. Yeah. Okay. Hello. Yeah. Hello, sir. My question is, I am Smita. My question is related to the pre-math concept. I won't take much time. I started the pre-math concept for my 4.5 years old boy, so he can understand the addition. Subtraction part is very difficult for him to understand, because when I'm giving some 5 beans to him and taking 3 beans out, so he started crying like, you are taking this out from me. So how to teach him the subtraction or the part I couldn't able to understand. Like, I tried some 4 or 5 techniques to let him understand, okay, we are giving 2 to father, 2 to mommy, and 2 to your sibling, but he's not getting that concept. So yes. So see, actually these issues come when the child is not comprehending the instructions properly, or comprehending the instructions, or you can say comprehending the sentence comprehension is not there. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। सपोज दैट अगर हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं, जब सिंपल सब्ट्रैक्शन के बाद, तो वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। उसका मेन रीजन है कि बच्चा ऑपरेशंस को नहीं समझ रहा है, जिसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इट इज कॉल्ड ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस। प्लस क्या है, माइनस क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा वही है, हमें 3-4 टर्म्स यूज करने हैं। लाइक सपोज एडिशन के लिए जैसे हमने ऐड कर लिया, आपने स्पेसिफिकली सब्ट्रैक्शन के लिए पूछा है, तो मैं वही करेंगे। उसमें आप 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हैं। एक तो आप टेक अवे का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, एक आप डायरेक्ट, क्या होता है हमारा बच्चा क्या होता है, कभी कभी वो इंस्ट्रक्शन नहीं समझता है, तो उसको विजुअल्स आपको देना है। आपने सपोज क्या किया, 3 एप्पल बनाए, 3 एप्पल्स की पिक्चर दिया, या आपने पहले उसके रियल के साथ अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। आप रियल उसके सामने 3 एप्पल रखिए, देन आप बोलिए कि ओके 1 एप्पल मैंने कट कर दिया, या 1 एप्पल मैंने हटा दिया, नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है टेक अवे, एक होता है लेफ्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें दोनों ट्राई करने के, बच्चा कौन सा कॉन्सेप्ट पिक कर रहा है, लेफ्ट का कॉन्सेप्ट पिक कर रहा है या वो टेक अवे का कॉन्सेप्ट पिक कर रहा है, तो वो बच्चा आंसर करेगा सपोज 2 है। सेम कॉन्सेप्ट आप उसे टेबल टॉप और यू कैन से कॉपी पे लेके आ जाइए, प्रॉपर एकेडमिक एरिया में लेके आ जाइए। आपने क्या किया, 4 एप्पल बनाए, और आप बड़ा सा मार्कर लेके उस एक एप्पल पे क्रॉस लगा दीजिए। कोशिश करिए कि वो डिफरेंट कलर का हो, सपोज रेड है तो रेड मार्कर नहीं लेना है, वो ब्लैक आप ले लीजिए, उसको बच्चे को क्लियरली हो कि ये हमने क्रॉस कर दिया है। देन आस्क द चाइल्ड दैट ओके नाउ यू काउंट हाउ मेनी आर लेफ्ट, और सपोज हमने 1 टेक अवे कर लिया है, देन नाउ काउंट हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव। सो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। और जब हम प्रॉपर माइनस में आए, जैसे सपोज हम केवल ऑब्जेक्ट्स के बाद केवल नंबर्स में लेके आ रहे हैं 3 - 4, तो उसकी 2 टेक्निक है। एक तो होता है कि हम पूरा पहले फिंगर्स पे या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, उसके बाद उसको कट कर दें, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है ना, इस सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट में मोस्टली बच्चे थोड़ा सा वो करते हैं कि पहले 6 - 4 है तो पहले 6 फिंगर काउंट करो, फिर 4 क्लोज करो, ना हाउ मेनी लेफ्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बच्चे को आप ना बैकवर्ड काउंटिंग पहले सिखा दो, माइनस सिखाने से पहले बैकवर्ड काउंटिंग सिखा दो। आप उसे बस ये बता दो कि एडिशन में हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। सपोज 2 + 1 है तो हमें नीचे वाले नंबर की 1 काउंटिंग, 1 फिंगर काउंट करनी है, या अगर नंबर लाइन बना रहे हैं तो 1 लाइन बनाना है, और ऊपर वाला नंबर है जो हमारा सपोज 4 है, उसके बाद हम आगे काउंटिंग करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, लाइक 4 कट 1 5। या हम फिंगर्स पे कर रहे हैं, लाइक सपोज 4 - 2 है, सपोज मैंने उसमें एडिशन का बोल दिया, माइनस बोलना है। माइनस में क्या करना है हमें, लाइक सपोज 4 - 2 है, तो हमने कहा ओके माइनस कितना है 2, 2 फिंगर ओपन करो, नाउ स्टार्ट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 4 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है, लाइक 4 से बैकवर्ड बोलो 3 2, आंसर इज 2। तो ये काफी हेल्प करता है। मैंने जो नोटिस किया है अपने बच्चों के साथ, मोस्टली बैकवर्ड काउंटिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी है बच्चों को सीखने में,
और पहले आप ये नहीं कि डायरेक्ट बैकवर्ड काउंटिंग को सब्ट्रैक्शन के साथ ही एसोसिएट करना है, पहले खूब सारी बैकवर्ड काउंटिंग सोचेगा। ओके, अगर उसको 100 तक नंबर रिकॉग्निशन है आता है तो आप बोलो उसे ओके 10 to 5 नंबर बैकवर्ड बोलो, 15 to 6 15 to 10 बैकवर्ड बोलो। ओके, आप नाउ 16 to 12 बैकवर्ड काउंटिंग बोल दो, 25 to 21 बोल दो। तो ऐसे बहुत सारा पहले बैकवर्ड काउंटिंग बिफोर नंबर का कॉन्सेप्ट उसको करके देन यू स्टार्ट। मैं वही कह रहा हूँ, इसको रेडीनेस का मतलब वही है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जाएंगे, then definitely our child is able to learn or he will achieve this. All right, sir. Thank you. Hello. Thank you Hello, so myself Jayashree. Last question. Yeah. हाँ, Yeah, Jayashree. हेलो। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा माइल्ड ऑटिज्म है, तो अभी उसका जो नॉर्मल स्कूल में बहुत फास्ट पढ़ाई होती है एज कम्पेयर्ड, वो इतना फास्ट ये नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग एक एक दिन में एक एक चैप्टर मतलब फटाफट फटाफट जो भी होता है। तो आई वांट टू टेल कि ये जो एजुकेशनल एप्स जो आए हैं जो नॉर्मल बच्चों के लिए, क्या हमारे बच्चे के लिए हेल्प करेगा, और उसके कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स रहेंगे हमारे बच्चे के, जैसे एडिक्शन हो जाए या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अब तक मैंने बिल्कुल, ट्राई ये नहीं आप किया। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जी। सी जो हमारे जितने भी एप्स हैं, जितने भी विजुअल एड्स हैं, डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, बट हमें बहुत बैलेंस करना है। जैसे आपने बोला ना कि एडिक्टेड ना हो जाए, उसके लिए हमें प्रॉपर सेट करना है। हमें बच्चे को विजुअल शेड्यूल के थ्रू समझाना है कि सपोज दैट हम 15 मिनट टेबल टॉप एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें नोटबुक और बुक्स के साथ पढ़ाई करनी है। हम उसके बाद 5 मिनट एप्स के, हम सपोज दैट जो एजुकेशनल एप्स है उन पे काम करेंगे, और बहुत हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा बच्चा एडिक्टेड हो जाता है, अगर आप पहले से ही श्योर हो जाए। और बच्चे को आप ना, जैसे क्लोज होता है, कई बच्चा एक बार स्टार्ट कर दिया फिर वो क्लोज नहीं करेगा, स्क्रीन करना स्टार्ट कर देगा, शाउटिंग करना स्टार्ट कर देगा, उसे टेक अवे कर नहीं सकते वापस। तो बहुत ही क्लियर करना है। आप साथ में कोई अलार्म रखिए, तो आपको बोल देना ठीक है, या आप काउंटिंग कर दीजिए। ओके, अब आप पहले हमने बच्चे को सिखा के हम कुछ कर रहे हैं, ओके इसमें आप बैकवर्ड काउंटिंग करो, सपोज दैट इसमें आप पिक्चर्स को सही से अरेंज करो। फिर आप बोलो ओके, जैसे ही अलार्म बजेगा आपको फिनिश करना है। और अलार्म थोड़ा सा हो जाता है कि सडन है, बच्चा एकदम अलार्म बजा शायद वो ना इंडिकेट करे, तो आपको कोशिश करना है कि उसको आप बोल दो कि हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, या हम 10 तक काउंटिंग करेंगे। सपोज हमने 10 से 0 तक किया, फिनिश किया। हमने 1 to 10 तक बोला, फिनिश। ओके, आप कर रहे हो, मैं 1 to 10 काउंट कर रहा हूँ, जैसे ही 10 आएगा स्टॉप। उस टाइम ये श्योर करना है आपको कि आप उससे ले लें। इनिशियली हो सकता है 1 or 2 डेज स्टार्टिंग में आपको वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, दोबारा दे। एक तो जब बच्चा सपोज स्क्रीन करना शुरू कर दिया, शॉर्टिंग करना, आपको दोबारा देना नहीं है। अगर आपने एक बार ले लिया, इट मींस ले लिया। आप उसमें रूड भी नहीं हो रहे हैं कि नहीं मैं अपनी दादागिरी चलाएंगे भाई, कि नहीं जब तुम चाहोगे तब देंगे, नहीं नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। बच्चे के साथ में कॉन्टेक्ट साइन करना है। कॉन्टेक्ट इन द सेंस ये नहीं होता कि हमें राइटर नहीं करना है, हमने उससे बात करके हमने डिसाइड कर लिया ओके आपको 5 मिनट मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम काउंटिंग करेंगे 10 तक आपको देना पड़ेगा। और फिर आप उसे क्लियर बोलिए ओके मोबाइल टाइम फिनिश, आप मैन वहां पर यूज कर सकते हैं फिनिश, या आप फिनिश बॉक्स में इवन आप विजुअल्स काफी हेल्प करते हैं, विजुअल कार्ड बना सकते हैं। ओके दिस एक्टिविटी अभी स्टार्ट वाला आपने कार्ड दे दिया, ओके स्टार्ट, फिर उसे आप स्टॉप वाला कार्ड दे दो, ओके फिनिश कार्ड दे दो, ओके नाउ दिस एक्टिविटी फिनिश, आप फिनिश बॉक्स में डाल दो। तो फिनिश बॉक्स एक्टिविटी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ओके थैंक यू। All right, sir. So now I have only last question, and then we will close it. So actually, दर्श के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है? एडिशन जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक हो गए हैं, लेकिन जैसे ही कैरी फॉरवर्ड आता है वो उसको भूल जाता है काउंट करना। देखिए एक सब बहुत बड़ा, ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। जब बोरोए की बात करते हैं माइनस में, कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं, एक्चुअली होता क्या है ना, हम बच्चों को रटवा देते हैं कि 11 हो गया तो 1 इधर आएगा, नीचे 1 ऊपर कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, सपोज आंसर हो गया 18 तो 8 नीचे आएगा, 1 आपका 2 नंबर एक साथ नहीं आएंगे, 1 ऊपर लिख दो। हम जनरली ऐसे सिखाते हैं। होता क्या है ना, वहां पर बच्चे को ना टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और हम जब टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट, उसमें हमें ये सिखाना है कि अभी हमने वंस को ऐड किया है, ठीक है, वंस को ऐड कर रहे हैं तो वंस वाला नंबर ही लिखा जाएगा। सपोज दैट हमने 8 और 9 प्लस किया, 8 और 9 इज 17, तो 17, अब 17 में तो 1 इसमें 10 है। हमें जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 1 10 एंड 7 वंस है, तो इसमें 1 तो 10 है, तो 10 तो 10 वाली लाइन पे ही जाएगा जहाँ 10 है, तो वहां हम इसलिए 10 को ऊपर भेज रहे हैं, यहाँ हम वंस वाला नंबर ही लिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसलिए लगता है कि हम शायद इसको कॉम्प्लिकेटेड है सिखाना, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिखा सकते हैं। दूसरा, जैसे सब्ट्रैक्शन में बोरो कर रहे हैं तो वहां भी हम यही प्रॉब्लम करते हैं कि बस एक इससे ले लो, और इधर सपोज हमने 5 से 1 बोरो कर लिया, इधर 3 है तो 13 हो जाएगा। बस हमने कह दिया 1 इसमें ऐड कर दो, एक्चुअली 13 कैसे हो गया वो हम नहीं सिखाते। तो हम ये कहते हैं कि हमने टेंस वाली लाइन से 1 बोरो किया है, तो आपने तो सीखा हुआ है कि 1 10 इज इक्वल टू 10, 2 10 20, 3 10 30,
तो हमने यहाँ से 110 बोरो किया तो 10 आया है, वंस में इसको बोलते हैं, तो then 10 + 3 = 13, इसलिए ये 13 है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली जब ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद नहीं सीख पाता है तो फिर हमारे पास ऑप्शन है ये, मतलब पहले तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कॉन्सेप्ट सिखाने की, लेकिन NIOS वगैरह इवन CBSE भी अब इसमें, जब हमारे बच्चे ऑपरेशंस में काफी प्रॉब्लम आता है, ये सब जब हम और क्रिटिकल कैलकुलेशंस हो जाती हैं, थोड़ा मुश्किल आता है, तो कैलकुलेटर का आजकल वो अलाउ करते हैं। CBSE भी कैलकुलेटर अलाउ कर रही है, NIOS भी अलाउ कर रही है। तो इन फ्यूचर अगर हम बात करेंगे बाई चांस कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा है तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, बट हाँ कोशिश हमें जरूर करते रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट बच्चा सीखेगा जरूर। और सर एक चीज और कॉमनली नोट की गई, बहुत से बच्चों के अंदर होता है ये कि ठीक है राइटिंग सही हो रही है, मतलब ABCD भी ठीक लिख रहे हैं, 1 2 3 भी ठीक लिख रहे हैं, जैसे ही वो ड्राइंग पे आते हैं वो पिकासो बन जाते हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स से डिस्कशन होता है, सब यही कहते हैं कि हाँ मतलब हम नॉर्मली क्या होता है, हम सोचते हैं कि खाली बैठा है चलो ये एक्टिविटी देते हैं, ड्राइंग करो, ड्राइंग इज ए गुड एक्टिविटी, और वहां पे वो नहीं क्या कर है पाते। ना, हाँ ड्राइंग में मतलब आपका कलरिंग करने से या कुछ ड्रॉ करने से है, आपका क्या है? जैसे कुछ भी ड्रॉ करना है, आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, टीचर्स बोलते हैं गणेश जी का बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए देखिए बात यहीं पर रेडीनेस की बात आ जाती है कि जो हम बच्चे को ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं क्या वो रेडी है, क्या वो कर पाएगा उसको, ये चीज हमें देखनी होती है। उसमें भी हमें ड्रॉ करने में स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, सपोज बच्चे को सर्कल बनाना आता है और यू बनाना भी आता है, ठीक है, तो आप बच्चे को सबसे पहले जो चीज उसको आता है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले उसको स्माइली बनाना सिखाओ। आप उसे बोलोगे आप बिग स्माइली, एक बिग सर्कल बनाओ, उसमें छोटी सी आईज, 2 सर्कल स्मॉल बना दो और छोटा सा यू बना दो, देखो स्माइली बन गया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कहा चलो आइसक्रीम बनाते हैं। आइसक्रीम में आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ट्राइंगल बना दो और एक सिंपल स्टैंडिंग लाइन बना दो, देखो कुल्फी बन गया। आइसक्रीम बनाना है तो आप एक क्या करो, वी बना दो, क्योंकि बच्चे को एसोसिएट करना है, उसको वी बनाना आता है। आपने बोला बिग वी बना दो, बिग आपने वी बना दिया, बिग बी के ऊपर क्लाउड बना दो, लो भाई आपका कॉर्न वाला आइसक्रीम बन गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे ट्री बनाना है, ओके ट्री बनाना है, चलो 2 स्टैंडिंग लाइन बना दो और उसके ऊपर क्लाउड बना दो, लो भाई ट्री बन गया। तो जो बच्चा आता है अगर हम उससे एसोसिएट करेंगे धीरे धीरे बिल्कुल वो सीख पाए। लेकिन हमें भाई मैं वही कह रहा हूँ, टारगेट मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी बाद में। एक चीज मैं कहूँ, हाँ बताइए। चाह रही हूँ कि हम भी कुछ ज्यादा नहीं कभी कभी एक्सपेक्ट करते। लाइक मैं अपनी बात करूँ, मुझे आज तक एक सीधी लाइन खींचना नहीं आती है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या बच्चा उसके रेडी है, नहीं एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं है, हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, जितना बेस्ट हो सकता है बच्चे से एक्सेप्ट करना चाहिए, बट हाँ रियल बेस, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है दे शुड बी रियल और एज पर द चाइल्ड लेवल। क्या सच में बच्चा हमारा उस लेवल पे है, क्या हम जो कराना चाह रहे हैं क्या बच्चे की प्री रिक्वेस्ट उसमें क्लियर है। इसीलिए प्री रिक्वेस्ट का बहुत, किसी भी चीज को सिखाने से पहले प्री रिक्वेस्ट बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोग मोस्टली बच्चों की, जो बच्चे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा बट मोस्टली मैंने नोटिस किया है, जो बच्चे एकेडमिक में एक बार स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में, वो लेटर्स नंबर्स को रिवर्स बनाना शुरू कर देते हैं, बी को डी, उनको रीडिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, राइटिंग में। ऐसा नहीं है कि डिसलेक्सिया का ही सिंबल है, इवन हमारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है 9 में। तो इसमें क्या है, इनिशियली हमारा क्या होता है, विजुअल जो क्लासिफिकेशन स्किल, इसके लिए जो हमारा एक तरह से रेस्पॉन्सिबल है, वो विजुअल क्लासिफिकेशन पे हमने पहले काम ही नहीं किया होता है, हमने विजुअल डिस्क्रिमिनेशन पे काम ही नहीं किया होता है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आगे आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वहीं सिखाते रहते हैं, नहीं तुम इसमें इस तरफ बनाओ, आप 9 को पहले सर्कल बनाओ फिर लाइन करो, तो हम सिखाते रहते हैं, बच्चा पता लगे टाइम लेता है। और यही अगर हमने विजुअल स्किल्स में पहले सिखाया होता उसको, प्रॉपर विजुअल में ऑड वन आउट, हमने सिमिलर पिक्चर्स को मैच करना, डिफरेंट पिक्चर्स को मैच करना वहां सिखाया होता, जहां डिफरेंट डायरेक्शनलिटी कॉन्सेप्ट है, एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो लेफ्ट शो कर रहा है, एक एरो राइट शो कर रहा है, और फिर हमने 4-5 एरो दिखा के उसको हमने पूछा कि आप इसमें करेक्ट एरो को बताओ कौन सा वाला है, सपोज उसको डिस्क्रिमिनेट करके करेक्ट एरो सर्कल करने के लिए बोला। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हमने अगर शायद पहले की होती तो वो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूँ, रेडीनेस बहुत जरूरी है एकेडमिक में, हर चीज के लिए। अगर हम पहले से प्रिपेयर होके, हमारे बच्चों के साथ तो वही है, हम कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल चीजें हमारे अपने बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमेशा हम बच्चों को पहले रेडी करके जरूर करना है। जो बच्चे के साथ हम करने जा रहे हैं पहले उसे पता हो, उसकी वो अवेयर है, तो डेफिनेटली वी विल सक्सीड इन दिस। All right, sir. Thank you so much for all these answers. Most welcome. It was really a pleasure to talk, and so a very interactive session. Today's session was very interactive. I really enjoyed. Yes, sir. So thank you so much, everyone, for your time and all the questions.
बिकॉज क्वेश्चन ही थे जिस वजह से ये इतना इंटरेक्टिव हो पाया हमारा सेशन में। ओके सर, सो वी आर क्लोजिंग दिस नाउ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सब सो पेरेंट्स पूछ रहे हैं कांटेक्ट के लिए, वो प्रमोद सर को कांटेक्ट करें, मेरा कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मिल जाएगा सर। राइट, उसी में वो सारी चीजें मेंशन है। Yes.